Hello students, today our question is a particle of mass m is initially at rest at the origin. It is subjected to a force and start moving along x-axis. Its kinetic energy k changes with time as dk divided by dt is equals to gamma t, where gamma is positive constant of appropriate dimension. Which of the following is true? A, B, C, D option is given here. So we have to find which option is correct. So the solution of this question is, we have the given change in kinetic energy with time is equals to gamma t here. So we can write here, this is our gamma here. So from this we can say that if we differentiate this with k constant, so we get dk is equals to, and this with time t, so we get gamma into dt. So from this we get k is equals to gamma t square, and this is divided by 2, and we know that kinetic energy is equals to half mv square. So from this we get this is equals to gamma t square, and this is divided by 2 here. So from this velocity v is equals to under root, if we apply root both sides, 2 and 2 will be cancelled out here. So we left with gamma divided by m, and we have the t square here. So after we left with gamma, and t is outside the square root, and from this we can say that v is directly, velocity is directly proportional to t. So we get one relation is this, well, between velocity and time. Now we know that force is equals to ma, mass into acceleration. So we have acceleration is equals to dv divided by dt, and this is gamma divided by m. So from this we get force is equals to constant, as this term is, this is constant here. So our force is constant. Now as a force is constant, so it only depends on, so it only depends on net displacement, not on path. So from this we can say that our force is conservative here, as the force that is conservative is independent of path, depend on final and initial position only here. So we get force is conservative, and we can write here dy. So from this we have dx, displacement over time, is equals to gamma divided by m, and this is t here. So from this, if we differentiate this with respect to x and here with time, so we get gamma divided by m into t into dt here. So from this we get x is equals to under root gamma, this is gamma here, gamma, and t square divided by 2. So from this we get x is directly proportional to t square. So we get this here. So now we check which options are correct here. So the speed, so the force applied on the particle is constant. This is correct. Speed of particle is proportional to time. This is correct. And the distance of particle from origin increases linearly with time. It is incorrect, as it is the relation between x is equals to t square. So from this we can say that C option is incorrect here. And the force is conservative, as it is constant, so it doesn't depend on the path. So it is independent here of the path, and the force is conservative. So option A, B, D are correct here. Thank you. Hello guys, so today we have this question that
Consider an elliptically shaped rail PQ in a vertical plane with OP equal to 3 meter and OQ equal to 4 meter. A block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with a force of 18 Newton, which is always parallel to the line PQ, as we can see the figure. Assuming no friction losses, the kinetic energy of the block when it reaches Q is N into 10 joules. The value of N is taken acceleration due to gravity is equal to 10 meter per second. So guys, in this question we have given that we have a rail PQ which has a OP is given, that is 3 meter, OQ is 4 meter, and a block of mass 1 kg is pulled along P to Q, and it is also given force, that is 18 Newton. So guys, we have to assume that no friction losses, the kinetic energy of the block is given, and the value of N is taken as 10 into 10 raised to power. So guys, we have to find the value of N. We have to find the value of N, which is taken acceleration due to gravity is taken, that is equal to 10 meter per second. So guys, here in this question, firstly guys, from the figure we can calculate the displacement of the particle from the point P to Q, as we can see this figure. So guys, in this figure, this P and Q, from this figure we can calculate the displacement of the particle from the point P to point Q. So we can then calculate the work done. The work done will be equal to the total energy at Q. So we can calculate the potential energy at Q according to its height. So guys, the kinetic energy will be the difference between the work done and the potential. So guys, the formula we are using here, that is, so we're starting from here, that we have the formula used. So guys, in this solution we will be using the formula, that is work done is equal to force into displacement, right? So guys, where we know W is what? W is work done, okay? F is force and S is displacement. So guys, we will complete it answer by step by step. So guys, according to the question, a block is taken from the P to Q. So here we have P and here we have Q. So this is a block given. So a block is taken from P to Q along the elliptical path PQ. Okay, now the force acting on the block produces work on it. So this work done will depend on the displacement of the block irrespective of path that is followed by the block. So guys, the displacement of the block will be the hypotenuse of the triangle, this P, O and Q. So guys, therefore we have PQ is then equal to, so guys, we know the formula of hypotenuse is base square plus perpendicular square. What is base here? This is 3 square plus what is perpendicular here, that is 4 square. So that is then equal to, so guys, on calculating we get the value, that is PQ is equal to root of what is the square of 3, that is 9 plus 16. So guys, on adding and removing the square roots, we have here the value is PQ is equal to root of 25, that is equal to 5 meter. Okay, so guys, this is the displacement of the block. So here this side we get this is 5 meter. Okay, so this is the displacement here. So guys, now the force acting on the block is in the same direction as the displacement, so the angle between the force and the displacement will be 0 then. So now the work done is given by, so here I can write now the work done is given by, we have here, so guys, firstly we know that the angle between the force and the displacement is 0. Why? Because the force that is acting on the block is in the same direction as the displacement. So we can say now work done is given by, now work done is given by, is given by, we have this formula, work done is equal to force into displacement, force into
displacement. So this will give us that this work done is then Fs cos theta. And what is cos theta here? Theta is 0. Why? Because force acting is in the same direction of the displacement. So guys, since cos 0 is equal to 1 and the force is given as F is equal to 18 Newton. As we can see from the question, force is given, that is 18 Newton, right? So guys, here, so cos theta is 0, it means it is equal to 1 and the force is given, that is 18 Newton. So substituting these values, we get here that this work done is then equal to cos theta is 1, okay, force is given, that is 18. And what is PQ? It is equal to displacement S, which is equal to 5 meter. So 18 into 5. So what we have? So guys, this is equal to then work done is equal to 90 joules. 90 joule. So guys, now the potential energy of the block is given by the formula. So guys, we know the formula that potential energy is equal to mgh, right? So the mass of the block M, that is equal to 1 kg, and it is also given that gravity acceleration due to gravity is 10 meter per second square is given, and the height of the point Q is given in the diagram. As we can see, height is given, that is equal to 4 meter. This is height. Okay guys, so we will substitute these values. So we get potential energy is equal to, what is mass? That is 1 kg. Acceleration due to gravity is 10 and height we know, that is 4 from the figure. So guys, we get now the potential energy is then equal to 40 joule. 40 joules. This is the potential energy. So guys, now the kinetic energy of the block will be difference in the work done and the potential energy. Okay, so we get what is kinetic energy, that is equal to the difference in the work done and the potential energy. Work done is W minus potential energy is this. So what we get the value of work done? So we get the value of work done, that is equal to 90, and what is potential energy? That is equal to 40. So guys, now we calculate that what is kinetic energy then. So we found that the kinetic energy is then equal to 50 joule. 50 joule. So guys, now we have to calculate. So guys, we can also write it as, firstly, we can also write it as that kinetic energy, okay, is equal to 5 into 10 joule into 10 joule. So guys, now, so comparing the form n into 10 in the question. So guys, here we have given the value of n is, okay. So if we compare it with this form n into 10, so what is the value of n then? So guys, we have the value of n as 5. So we can say we get value of n as 5. So guys, I hope now you understand this question. So thank you guys. Hello everyone, in this question, the displacement x of particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to the time t by the equation t is equals to root under x plus 3, where x is in meter and t is in second. First, find the displacement of the particle when its velocity is 0 and the work done by the force in the first 6 seconds. So, in this question, here we see here, that is the time is given t is equals to root under x plus 3 and displacement. So displacement can be written as here, that is x is equals to root under x is equals to t minus 3, and squaring on both sides we get here this is equals to x is equals to t minus 3 whole square, and we have to find the displacement. So we differentiate here, that is dx by dt
v equals to dx by dt, and this is equals to dx by dt. We differentiate here, this becomes, this is 2 and this is t minus 3. So this is the displacement and this is the velocity. And in the first part we have to find here that the displacement of the particle when velocity is 0. So when velocity, for first part, this is first part, for velocity is 0, v equals to 0. So we see here v equals to 0, put in this equation. So v equals to 0 is equals to 2 multiplied t minus 3, and this is equals to 0 is equals to 2t minus, this is equals to 6. So, and on solving we see here that is this is equals to 2t is equals to 6. So time t is equals to 3 seconds. So time is here, this is 3 seconds, and we have to find in the first part that is the displacement. So displacement is, this is the displacement, so we put the value in this equation. So the displacement x is equals to, this is t and t is equals to 3, so this is 3 minus 3 whole square is equals to 0, whole square is equals to 0. So the displacement in this case is 0. And in the second part we have to find the work done by the force in the first 6 seconds. So we have to find the work done for the B part, and that is initial velocity vi is equals to 2 multiplied t minus 3, and initially the time is equals to 0. So initial velocity vi is equals to, this is equals to 2 multiplied and t is here 0 minus 3 is equals to, this is minus 6 meter per second. And final velocity after time t is equals to 6 seconds, after time 6 seconds, so this is equals to 2 multiplied 6 minus 3 is equals to 2 multiplied 3 is equals to 6 meter per second. And we know that from the formula work energy theorem, that is change in kinetic energy delta ke is equals to half m v final square minus v initial square. So we put the value here, this is equals to half is m, and final velocity is here, that is this is 6 square, and this is here, this is minus, and this is minus 6 whole square. Initial velocity is here, so this is equals to half m, and this is 6 square 36, and this is minus minus plus, and this is 36. So changing kinetic energy is here 0. So the work energy theorem, that is the work done by the force on the 6 second is 0. So this is the second part. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. 4 possible forms of potential energy of the particle are given in column 1. A and U naught are constants. Match the potential energy in column 1 to the corresponding statements in column 2. ठीक है, तो पार्ट 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बोल रही है कि U1 ऑफ x इज इक्वल टू U0 बाई 2 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर. इसको हमें मैच करना है कि जो पार्ट ए अपना किससे मैच कर रहा है, तो ए से स्टार्ट करते हैं. ऐसा हम हर एक पार्ट के लिए करेंगे. तो ए अपना क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है U1 ऑफ x इज इक्वल टू U0 बाई 2 1 माइनस x बाई a का स्क्वायर. ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे, मतलब जो कॉलम 2 है उसके ऑप्शंस. तो फोर्स की बात की जा रही है, तो कंजर्वेटिव पोटेंशियल और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो डिफाइन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं कि मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हो हमें तो फोर्स हमारा उनका नेगेटिव डिफरेंशिएशन होता है, मींस माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाता है फोर्स अपना. ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहाँ से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं. तो जो F1 है वो हो जाएगा अपना माइनस डी यू बाई डी एक्स, मीन्स इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो U0 बाई 2 अपना कॉन्स्टेंट है, तो अपना ये तो ऐसा ही रहेगा. ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर. ठीक है, फिर चेन रूल के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का 0 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद तो होगा नहीं. ओके, तो ये आ गया अपना इसका फोर्स. ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपना. ये हो जाएगा माइनस 2 U0 x अपॉन ए स्क्वायर. ओके, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपना
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, और ये आ जाएगा अपना दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 2 यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा अपना ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे एक माइनस डी वाई डी एक्स होता था तो पहले से माइनस होगा यहाँ पे, तो ये माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मीन्स ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और लिख लेंगे अपन, तो जो अपना फोर्स है वो आ जाएगा 2 यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे लिख लें एक्स प्लस ए, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए एंड एक माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आ गया अपना फोर्स। नाउ पार्ट जो पी क्यू आर क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू एक माइनस ए ऑप्शन होगा, ये अपना माइनस ए है। यहाँ पे 2 बार 0 होने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो अपने इसके तो ये तीनों रूट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रूट क्या क्या हो गए, एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो अपना 0 है, मीन्स जो अपना पार्ट ए था उसके लिए कौन कौन पी क्यू आर तो अपने मैच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एस क्या है, पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड एट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इज इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड एक्स लेस देन ए। ठीक है, तो अपना उसने बोला है कि जो मॉड एक्स है वो लेस देन ए है, एंड जो पार्टिकल है वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, इसकी जो फोर्स हो उस रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स हो जाए। अब अपना मॉड एक्स लेस देन ए है, ठीक है, मीन्स मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब समझ रहे हो आप, जो एक्स है अपना वो किस किस के बीच में, माइनस ए एंड ए के बीच में है। ठीक है, ए है अपना एक्स। ठीक है, अगर इसके बीच में है तो जो अपना एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, अपना नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स जो टोटल फोर्स था अपना F1 वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव एंड इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो इसके लिए आर एस मैच नहीं कर रहा है। टी क्या है, द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का, मीन्स d2u dy dx स्क्वायर, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अपना F1 हमें पता चल गया था, तो ये आ जाएगा अपना माइनस 2 यू नॉट डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4। ठीक है, एक एक करके आएंगे तो x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपना x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। सिमिलरली x प्लस ए का डिफरेंशिएशन होगा तो ये बना जाएगा, फिर से x ऑफ x माइनस ए बचेगा, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन होगा तो x ऑफ x प्लस ए बचेगा। ठीक है, मीन्स d2u dx स्क्वायर। अब हमें किसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है, माइनस ए पर हमें कैलकुलेट करना है कि जो पार्टिकल है वो माइनस ए के अबाउट ऑसिलेट कर सकता है, तो माइनस ए पुट करेंगे, माइनस ए इसमें पुट करेंगे d2u dx स्क्वायर। तो अपन वैल्यू फाइंड करते हैं d2u dx स्क्वायर की एट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा, ए वाले टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा माइनस ए इंटू माइनस 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। यहाँ पे मैंने गलती से माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने F1 लिया था, F1 माइनस dy dx होता था, तो इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया है, जबकि हमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है d2u dx स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। या फिर आप ये समझ लीजिए ये क्या कैलकुलेट हुआ अपना माइनस dt dx स्क्वायर, तो dt dx स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस इसका, मीन्स अब माइनस ए पुट कर रहे हैं तो ये अपना क्या क्वांटिटी आ रही है पॉजिटिव, मीन्स जो dt dx स्क्वायर है वो अपना x इज इक्वल टू माइनस ए पे क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे du dx है वो x इज इक्वल टू माइनस ए पे 0 है, तो ये अपना क्या करेगा, कर्व का मिनिमम पॉइंट होगा। इसका मतलब इसके अबाउट अपना ऑसिलेशन हो सकता है। अब ये और देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ए पे जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। ठीक है, तो वो फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा u नॉट बाई 2 इंटू 1 माइनस, ठीक है, ये कितना होगा, x की जगह माइनस ए पुट करना है, माइनस ए पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, और u1 अपना मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ए अपना टर्म 0 हो जाए, मीन्स u नॉट बाई 4, तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो अपनी u नॉट बाई 4 है। ठीक है, और जो टोटल u नॉट बाई 2 होगी ना, क्योंकि अपना x यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1, तो u नॉट बाई 2, तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है वो अपना u नॉट बाई 2 है, और जो टोटल एनर्जी है
एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे वो कितनी है अपनी यू नॉट बाई 4 है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के अबाउट क्या कर सकता है अपना ऑसिलेशन कर सकता है। तो इसके मीन्स पार्ट ए का अपना मैचिंग क्या क्या हो जाता है, पार्ट ए का मैचिंग हो जाता है अपना पी हो जाता है, क्यू हो सकता है, आर हो जाता है, एस नहीं होगा एंड टी हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ अभी अपना पार्ट ए। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी के लिए जो यू है अपनी वो क्या है यू नॉट बाई टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यू टू ऑफ एक्स इक्वल टू यू नॉट बाई टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यही तो है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स निकालेंगे तो F1 हो जाएगा अपना क्या माइनस डी यू बाई डी यू टू बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना माइनस ऑफ यू नॉट बाई टू इंटू टू एक्स बाई ए स्क्वायर। ओके, एंड डी टू बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा अपना, इसमें पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा अपना, इसका और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक बार तो ये कितना आ जाएगा सिंपली टू यू नॉट ओके डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या क्या बोला गया पार्ट देखते हैं। तो इसका जो फोर्स है वो कब जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पर हो रहा है ओनली जीरो। तो जो बी है अपना वो केवल क्यू से मैच करेगा, मतलब पी क्यू आर में क्यू से मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद एस वाला देख लीजिए, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द रीजन मॉड एक्स लेस देन ए। ठीक है, तो मॉड एक्स लेस देन ए पे ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या। तो गाइस अट्रैक्टिव फोर्स के लिए जो अपना एफ होना चाहिए, यहाँ पे F2 की बात कर रहे हैं क्योंकि सेकंड पोटेंशियल एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स होना चाहिए। तो मोड एक्स लेस देन ए मीन्स जो एक्स है अपना वो ए से कम होगा, पॉजिटिव है, तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव आएगा क्योंकि ये सारी क्वांटिटी अपनी पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स भी अपना पॉजिटिव है और नेगेटिव अपना पहले से ही मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मीन्स एस अपना सही पार्ट है। ठीक है, टी दी पार्टिकल विद टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे इसका फोर्स ही जीरो नहीं है तो ऑसिलेशन की बात तो कर ही नहीं सकते, तो इसका मैचिंग क्या है केवल अपना क्यू एंड एस ही है। ठीक है, अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में अपना क्या है, पार्ट सी में दिया गया यू थ्री एक्स इज इक्वल टू यू नॉट बाई टू इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यू नॉट बाई टू इंटू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, माइनस ऑफ एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है अपना क्या यू थ्री ऑफ एक्स। ठीक है, तो देख लीजिए माइनस ऑफ एक्स बाई ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स निकालेंगे तो F3 क्या आ जाएगा अपना, F3 इज इक्वल टू माइनस डी यू थ्री ऑफ एक्स बाई डी एक्स। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा अपना, तो ये आ जाएगा अपना, डिफ्रेंशिएट करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यू नॉट बाई थ्री एक्स ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना फोर्स। ठीक है, तो कुछ पार्ट तो हम देख सकते हैं, वो बोल रहा है दी फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये तीनों इसके रूट हैं आप देख सकते हैं, तो फोर्स अपना जीरो होगा। मीन्स सी पार्ट के लिए अपने पी क्यू आर तो फिक्स हो गए, सी पार्ट के लिए अपने पी क्यू आर तो फिक्स हो गए, बाकी एस एंड टी और चेक करने हैं। तो एस क्या है, द पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे रीजन क्या है, मॉड एक्स लेस देन ए पे, मॉड एक्स लेस देन ए पे ये अपना अगर जो F3 है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स है तो अट्रैक्टिव होगा। तो देख लेते हैं, तो एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए ये कैसा होगा, मॉड एक्स लेस देन ए में नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड एक्स कैसा है अपना, एक्स अपना कैसा भी हो। ठीक है, तो ये मतलब ओवरऑल क्या रहेगा, ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी। मीन्स ये अपना करेक्ट हो रहा है कि मीन्स अराउंड एक्स इज इक्वल टू जीरो मॉड एक्स लेस देन ए में रीजन में जो फोर्स है वो अपना कैसा है, अट्रैक्टिव है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, एस ऑप्शन अपना यहाँ से आ जाता है, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब टी और देखना पड़ेगा हमें,
टी के लिए क्या बोल रहा है, दी पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें इसके लिए d2u/dx² फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल d2u3 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx² फाइंड करना पड़ेगा। तो ये अपना आ जाएगा माइनस ऑफ u0 डिवाइडेड बाई ए क्यूब x प्लस ए x माइनस ए प्लस x ऑफ x माइनस ए प्लस x माइनस ए x प्लस ए 2x बाई ए, ठीक है, माइनस x ऑफ x माइनस ए, ठीक है, टाइम्स e टू द पावर माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर। ओके, तो d3u3x अपॉन dx² x इज इक्वल टू माइनस e पे क्या है, क्या ये नेगेटिव है, ये चेक कर लेते हैं बस, इससे आंसर आ जाएगा अपना। तो x इज इक्वल टू माइनस ए पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा अपना, ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ओके, अब अपने बचे ए वाला टर्म, ठीक है, एंड ए वाला टर्म। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे अपने, ये हो जाएगा पॉजिटिव माइनस ए और माइनस 2a, ठीक है, ये क्या होगा अपना माइनस 2a माइनस ए नेगेटिव 0 हो रहा है, ये तो अपना 0 आ रहा है। अब इसकी x इज इक्वल टू माइनस ए पे वैल्यू चेक करते हैं, इसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो माइनस ए पे ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, x प्लस ए वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ए वाला 0 हो गया, क्या बच रहा है केवल ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टर्म भी माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए इंटू माइनस 2a कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और ओवरऑल नेगेटिव बाहर है, तो ये जो d2u3x अपॉन dx² है वो क्या आएगा अपना लेस देन 0 आएगा। मींस x इज इक्वल टू माइनस ए पे जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी अपनी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे ऑसिलेशन की कोई बात ही नहीं कर सकते, अगर मिनिमम होती स्टेबल होता है तो इसके अबाउट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम। तो ये अपना टी नहीं है, इसके आंसर है ओनली PQRS। नाउ लास्ट बनता है अपना डी पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया कि जो u4 ऑफ x है वो है अपना u0/2 x बाई ए माइनस 1/3 x बाई ए का होल क्यूब, ठीक है, ये अपना u4 है x, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फोर्स होता है क्या अपना माइनस du/dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F4 इज इक्वल टू माइनस du4 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से अपना F आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ, कैलकुलेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा u0/2a क्यूब, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a² माइनस x², ठीक है। F आ गया तो a² माइनस x² क्या हो जाएगा अपना a प्लस x a माइनस x। ओके, तो इसके रूट क्या क्या हैं, एक तो है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए पे फोर्स क्या होगा 0 होगा, तो इसका कौन कौन सा हो जाएगा अपना P एंड R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं D से कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, P एंड R। अब बच रहे हैं अपने S एंड T। S एंड T में क्या बोल, S क्या था, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे a² माइनस x² नेगेटिव होगा अपना मॉड ऑफ x लेस देन a के लिए, ठीक है, एंड माइनस पहले से अपना, तो ये टोटल चीज क्या हो जाएगी पॉजिटिव। मींस इस केस में अपना जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मींस रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो अपना r s पार्ट तो नहीं होगा। t क्या बोल रहा है, द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, d2u4 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx²। जब ये अपन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना दिस इज इक्वल टू माइनस u0 डिवाइडेड बाई 2a क्यूब, ठीक है, x प्लस ए प्लस x माइनस ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हमें किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू माइनस ए पे चेक करना है, तो ये कितना होगा माइनस, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 2a हो जाएगा, ये अपना क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, मीन्स d2u4 ऑफ x डिवाइडेड बाई dx², ये क्या है अपना पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अब हमें चेक करनी पड़ेगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सकती है, यहाँ से चेक करिए, मैक्सिमम अपना कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, x इज इक्वल टू ए पर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस ए पे अपना मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u0/3। अब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी दी थी अपनी u0/4 वो लेस देन है u0/3, तो यहाँ पे अपना क्या ऑसिलेशन हो सकता है अबाउट x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसके क्या क्या हो जाएंगे PRT। इस तरह अपने चारों पार्ट अपने सॉल्व कर लिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
थैंक यू।